Good morning, all. आशीष दिव्यांशु बाकी लोग और if you have any kind of queries or doubts or any topic, let us discuss. Else, I just recall all these slides of this network layer so that it may be helpful for you. So we were talking about forwarding, nothing but move the packets from your routers input to appropriate router's output, or we can say that the process of getting through a single interchange path. Routing is nothing but determining a path from source to destination, or determining the route taken by the packets from source to the destination one. Then the interplay between routing and forwarding is nothing but what? The routing algorithms are basically used to determine the route from source to destination. That means from your edge router of your network to another edge router of your network. Okay. So from this router to this router and this router to this router, and for that, the routing algorithm generate the routing table. That routing table is nothing but your forwarding table, and that table determines the local forwarding. The router means what are the header values, input and output values part. So then we have seen the different kinds of network layer services. So one is your connectionless service, another one is connection oriented. So connectionless service is nothing but your datagram network we used to call. Okay, and connectionless service means it is your connection oriented means it is your virtual circuit networks. Okay, just like as we was the TCP and UDP part. So then when we talked about the virtual circuits, then we are saying that these virtual circuits are basically used to form a connection-oriented route from source to destination. For that, it's consisting of three different steps. One, it must have a path from source to destination, and secondly, for every path, the path is determined as the links, series of links and your router, and for every link there will be a virtual circuit number is assigned for each link along the path, and it also maintains, means every router also maintains the entries for the forwarding table or routing table we use to call. So that routing table consists of the incoming interface and the incoming virtual circuit number, as well as the outgoing interface and the outgoing virtual circuit number. So this is the basic implementation part of your virtual circuit. And then we talked about the physical implementation part, where the virtual circuit setup is established in three different steps. One is first is to go for like a three handshaking process, it go and establish the setup between source and destination. Then it maintains that particular connection until the data is transmitted. And once the data is transferred successfully, it will go to the tear down process. Means the entry will be, the connection is released. So when the connection is established in virtual circuit, then there will be an entry in the forwarding table, and when the connection is released, that entry is deleted or removed from your forwarding table part. So comes to your datagram network, I said it is a connection-less service, or there is no connection is established here. Okay, are you guys listening? Are you guys following this slide? Okay, yeah. So there is no call setup at the network layer to establish the datagram networks in between source and the destination. So the router, if there is no connection setup is there, that means there is no state about the end-to-end connections, whether the connection is established or not. That is what. So in datagram networks, what happens simply whenever the जब सोर्स नोड के पास अगर कोई भी एक पैकेट हो तो पाथ डेस्टिनेशन तक पाथ है कि नहीं ये नहीं देखते हैं,
बस जैसे पैकेट रेडी हुआ तो उस पैकेट को बस नेटवर्क में भेज देता है, और वो नेटवर्क में वो अपने अपने रास्ते जाते हैं पैकेट और डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाके सारे पैकेट इकट्ठा होकर एक सीक्वेंस में लगाया जाएगा और तब जाके वो एक मैसेज बनता है। लेकिन वर्चुअल सर्किट में क्या है कि जो पाथ एस्टेब्लिश किया गया सारे पैकेट उसी पाथ में जाना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब जैसे वर्चुअल सर्किट में राउटिंग एल्गोरिथम यूज किया था, वैसे डाटाग्राम नेटवर्क में भी राउटिंग एल्गोरिथम होगा। राउटिंग एल्गोरिथम का काम होता है राउटिंग टेबल को जनरेट करना, और राउटिंग टेबल में क्या होगा कि इनकमिंग एड्रेस रहेगा, इनपुट एड्रेस रहेगा, इनपुट इंटरफेस का, और आउटपुट एड्रेस रहेगा। वर्चुअल सर्किट में क्या होगा, इनपुट इंटरफेस और वर्चुअल सर्किट नंबर होगा, आउटपुट इंटरफेस और आउटपुट वर्चुअल सर्किट नंबर होगा। लेकिन डाटाग्राम में क्या होगा, सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। और डेस्टिनेशन एड्रेसेस कैसे होंगे, एक 32 बिट का एड्रेस दिया जाता है, और वो 32 बिट का एड्रेस जो है वो 0s and 1s पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फॉरवर्डिंग टेबल में मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए वहां पर डेस्टिनेशन एड्रेस का रेंज बनाया जाता है। ठीक है, और उस रेंज में अगर कोई इनपुट पैकेट आया और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस उस रेंज में है, तो उस रेंज के लिए जो भी आउटपुट लाइन रहेगा उस आउटपुट लाइन पे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ डिफरेंशिएट करके देखें कि डाटाग्राम नेटवर्क वैसे वर्चुअल नेटवर्क का, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे असाइनमेंट के लिए हो चाहे एग्जाम के लिए हो। यहाँ पर इश्यू क्या है कि कनेक्शन सेटअप में देखे तो डाटाग्राम के लिए कनेक्शन सेटअप नहीं होता है, लेकिन वर्चुअल सर्किट में कनेक्शन सेटअप होता है फ्री हैंड सेटिंग। एड्रेसिंग में इसमें पैकेट कंटेंट फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है डाटाग्राम में, और यहाँ पर वर्चुअल सर्किट में पैकेट कंटेंट शॉर्ट वर्चुअल सर्किट नंबर आइडेंटिफायर, दैट इज वीसी नंबर जो होता है। तो ये सारे पॉइंट कवर कर लेना चाहिए आपको कि कनेक्शन सेटअप होता है कि नहीं, एड्रेस कैसे होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन डाटाग्राम नहीं मेंटेन करता है, वर्चुअल सर्किट मेंटेन करता है। और राउटिंग टेबल जो है पैकेट रूटेड इंडिपेंडेंटली डाटाग्राम में, क्योंकि कोई पाथ ही एस्टेब्लिश नहीं होता, और यहाँ पर वर्चुअल सर्किट में तो पाथ एस्टेब्लिश होता है, इसलिए एक ही रूट पे चला जाना चाहिए सारा। और इफेक्ट ऑफ रूटर फेल्यूर और कंजेशन कंट्रोल, ये पॉइंट अगर कवर कर लिया तो आपको अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 मिलेगा, 4 का होगा तो 4 मिलेगा, 6 का होगा तो 6 का मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर हम आईपी नेटवर्क के बारे में बातें किया था हमने, आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट। तो IPv4 स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है, और वर्जन 4 कहता है कि आईपी एड्रेस बेसिकली 0s and 1s पे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हमें आईपी एड्रेस 0s and 1s पे याद करना मुश्किल है, इसलिए वो 32 बिट को 8-8 बिट का 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब एक एक बाइट का। तो इसलिए आईपी वर्जन 4 बाइट्स, 4 मीन्स 4 बाइट्स कहा जाता है, और एक एक बाइट में 8 बिट्स रहेंगे। और वैसे 8-8 बिट्स को भी डॉट से सेपरेट किया जाता है, डॉटेड बाइनरी डॉटेड आईपी एड्रेस कहा जाता है उसको। उसको भी याद रखना मुश्किल है, इसलिए वो डॉट जो बाइनरी वैल्यूज है उसको तो डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके वो बाइनरी क्या कहते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट कहा जाता है। ठीक है, और उसका जो डाटाग्राम फॉर्मेट जो है 32 बिट का ऐसा होता है, यहाँ पर देख रहा है कि वर्जन क्या है, IPv4, यहाँ पर वर्जन आएगा 4, और हेडर लेंथ हो गया आपका कि एक डाटाग्राम पैकेट का कितना लेंथ है वो आएगा यहाँ पर। तो टाइप ऑफ सर्विस, कौन से टाइप के सर्विस है, डाटा टाइप या कंट्रोल टाइप के सर्विस है। ठीक है, अब ऐसे इस चीज को याद रखना जरूरी है, वर्जन नंबर, हेडर लेंथ, टाइप ऑफ सर्विसेज, डाटाग्राम लेंथ। ठीक है, लैंग्वेज। फिर जाके ग्राफ एब्स्ट्रैक्शन जो होता है कि कोई भी अगर नेटवर्क हम ग्राफ के रूप में अगर दिखाया जाए तो उसको हम मतलब एक नेटवर्क ऐसा अगर दिखाया गया तो उसको हम ग्राफ में कह सकते हैं। तो ग्राफ कैसे डिफाइन होता है, तो ग्राफ इज डिफाइंड एज जी ऑफ
n कामा e बोलते हैं। n बोले तो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स मतलब है यहाँ पर कितने राउटर्स है इसमें राउटर कितने, 1 2 3 4 5 6 राउटर्स है। तो यहाँ पर हो गया 6 राउटर्स, U V W X Y Z, वही नाम दिया गया यहाँ पर U V W X Y Z। तो ये ग्राफ एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर जो एडजेस है U से V के लिए और U से W के लिए, वो जो एडजेस है, एडजेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। U से V के लिए एडज है, U से X के लिए है, V से X के लिए है, तो वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो बाद में हमने लिंक स्टेट एल्गोरिथम को क्लासिफाई किया गया, उसमें अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, नॉन अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम के बारे में जाने थे। और वो अडैप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में आपको आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम एंड फ्लडिंग राउटिंग एल्गोरिथम। और नॉन अडैप्टिव राउटिंग में आता है आपको कि लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है। And that we were observed a few of the examples in the last class. ठीक है। तो फिर अगर आपको नोट्स एंड एडजेस करेक्ट किया, तो अगर आपको किसी को अगर कोई डाउट है तो यू वेलकम टू आस्क मी। क्लियर आउट दी IPv4 फॉर सबनेटिंग 8 16 24। ये आपका फर्स्ट मिड होने के बाद बताऊंगा मैं। आशीष, ये मैं असाइनमेंट में दिया है क्वेश्चन, ये आप खुद ही समझ के असाइनमेंट लिखोगे, वो उसका इवैल्यूएशन होने के बाद मैं फिर आपको समझाऊंगा। सेकंड मिड के बाद अगर जो भी असाइनमेंट में दिया गया क्वेश्चन, उस सेकंड मिड के बाद आपको समझाऊंगा, ताकि फाइनल एग्जाम में लिख सके। अभी नहीं समझाऊंगा। असाइनमेंट में दिए क्वेश्चन के अलावा कुछ भी पूछो, बताऊंगा। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, वरना आशीष दुख हो जाएगा। कोई एक स्लाइड लेते हैं, डुप्लीकेट करता हूँ। हमें IP, अरे यार, एक सेकेंड। सर, हेलो सर। ये IPv4 हो गया है ना, थोड़ा समझ लीजिए। और हमारे पास IPv4 एड्रेसेस के लिए 32 बिट है। सो उस 32 बिट के लिए हमने क्या क्या किया, 4 बाइट में उसको डिवाइड किया, राइट। ठीक है। फिर हमें IPv4 क्लास ए, इसमें ये कहा गया कि 1 बाइट नेटवर्क एड्रेस के लिए रहेगा, जो पहला वाला बाइट उसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। ठीक है ना। और बाकी 3 बाइट जो है तो हो गया होस्ट पार्ट और होस्ट एड्रेस के लिए, बराबर ना। ठीक है। तो टोटल 32 बिट में नेटवर्क एड्रेस के लिए हम कितने लिए भाई, 8 बिट लिए ना, है ना। तो स्लैश यहाँ पर हम 8 लिखते हैं। इफ ओनली 1 byte is used for network address and
रिमेनिंग 3 बाइट्स यूज फॉर द होस्ट एड्रेस पार्ट, ठीक है। और Sir, screen is not visible, sir. next you can find again 4 bytes, ठीक है। अब उस 4 बाइट में हुआ पहला 2 बाइट जो है नेटवर्क एड्रेस के लिए और दूसरा 2 बाइट है आपको होस्ट के लिए होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 8 बाइट और यहाँ पर 8 बिट, पूरा हुआ 16, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लास बी एड्रेस। इसको क्लासफुल एड्रेसेस में से क्या है? Sir, a screen is Okay. not visible. Hello. Sir, your screen Yes, sir. is not visible. Screen is not visible. Okay, okay. अब दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir, no visible. चलो, हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि सबनेटिंग के बारे में बोल रहा था ना इन्होंने, तो वो क्लासेस पे डिपेंड होता है। जो पहला क्लास ए है उसमें IPv4 मतलब 32 बिट का है ना, तो 32 बिट को हम 4 बाइट में डिवाइड किया। तो 4 बाइट में अगर पहला बाइट नेटवर्क एड्रेस के लिए रहेगा और बाकी 3 जो है, दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा? Yes, sir. ओके, पहला बाइट नेटवर्क एड्रेस के लिए रहेगा वो 8 बिट का, बाकी अगर तीनों बाइट जो है वो अगर होस्ट एड्रेस के लिए रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, बाई 8, सबनेटेड बाई 8, और वो क्लास ए हुआ, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, अगर 2 बाइट नेटवर्क एड्रेस के लिए रखे और 2 बाइट हम होस्ट एड्रेस के लिए रखे तो उसको हम बाई 16 बोलते हैं, सबनेटिंग, ठीक है। और उसको हम क्लास भी बोलते हैं। जैसे अगर क्लास सी के लिए आ गया, ठीक है। अब क्लास सी में क्या होगा भाई, सेम 32 बिट जो है वो 32 बिट 4 बाइट में डिवाइड होगा और उस 4 बाइट में पहले 3 बाइट जो है नेटवर्क एड्रेस के लिए रहेंगे, है ना, और बाकी 1 बाइट जो है वो होस्ट एड्रेस के लिए रहेगा। तो हम उसको 8 + 8 + 8 हुआ 24। समझ में आया भाई? अगर पहले 3 बाइट जो है नेटवर्क एड्रेस के लिए रहेगा और लास्ट बाइट जो है होस्ट एड्रेस के लिए, तो मैक्सिमम हम कितने सिस्टम्स को अकोमोडेट करेंगे भाई? 2 to the power of 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 255 systems. So out of 255, okay, out of 255 एक होगा नेटवर्क एड्रेस, है ना। अब नेटवर्क एड्रेस कैसे होगा बाबा? जैसे मान ले यहाँ पर देखता हूँ, 192.168.1 अगर 0 दिया तो हो गया वो नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। और लिखा कि 192 डॉट और यही जो है, और यहाँ पर .0 के प्लेस में अगर 255 लिख दिया तो वो हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है।
ठीक है, तो ये दो एड्रेस अगर माइनस कर दिया 0 to 255 में, अगर ये दो एड्रेस माइनस कर दिया तो कितने एड्रेस यूज करेंगे भाई? 254 एड्रेसेस। 0 हो गया नेटवर्क एड्रेस के लिए, 55 हो गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो हम 0 से लेकर 254 तक हम सिस्टम्स को अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान ले हमारे पास 300 सिस्टम्स है, तो उस टाइम पे ये जो होस्ट वाला है ना नेटवर्क क्लास ये काम नहीं आएगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये नेटवर्क एड्रेस से कुछ बाइट्स हमें होस्ट में लेना ही पड़ेगा, है ना? तब जाके वो बाइट 24 के जगह में बाइट 23 हो सकता है, अगर एक बिट ले लिया तो। अगर हमारे पास कुछ 1000 सिस्टम्स है, 1000 सिस्टम्स के लिए हमें कुछ आधा बाइट लेना पड़ेगा इस नेटवर्क एड्रेस से। तब जाके वो हो जाएगा कि मान ले बाई 20 या बाई 18 कुछ भी हो सकता है ना? So depends upon the size of your network, depends upon your size of your network. If you are borrowing the bits from your network address, or our size of the network is very small, so host bit को network address में डाल देंगे हम, ताकि सर्चिंग में इजी हो जाए। तो इस चीज को नेटवर्क बिट को होस्ट एड्रेस में डालना और होस्ट बिट्स को नेटवर्क बिट्स में डालना, इसी चीज को हम कहते हैं सबनेटिंग। गॉट इट? समझ आया बाबा? ओके, चलो अच्छी बात है। और कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनरोल योर नंबर इन द chat box, and all the best for your exams. Best of luck, and complete your assignments and upload in the classmate. ठीक है, जैसे पहला असाइनमेंट भेजे थे ये भी ऐसे ही अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, और मेरा ऑफिस नंबर है MA254। आई रिपीट, माय ऑफिस नंबर इज, और माय लोकेशन इज MA, my office or location number is MA254. You can visit me at any time to this office if you have any kind of queries. ठीक है राज? सब ठीक है राज? Yes, sir. सोनू, दिव्यांशु? Yes, sir. ओके, सब ठीक है या कोई डाउट्स? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू आर वेलकम टू आस्क। ठीक है, and I think my office location is clearly visible to you, MA254. Okay, from today or from tomorrow onwards I will be full timely available in my office. If you have any kind of queries regarding your course or any other issues, you are welcome and visit me, but before coming you just ping me. That's okay? Sir, today your free time slot, sir. You know, just a second, I'll give you. Yeah, 11:55 to 12:55, except that slot you can come at any time, no problem. Okay, sir. 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मैं बिजी रहूंगा, बाकी टाइम पे मैं फ्री रहूंगा, कभी भी आ सकते हो। ठीक है, so hopefully your computer network course is successfully completed, all the chapters. Yeah, till 3 o'clock I will be in my office only.
जो लास्ट चैप्टर था आपका डाटा लिंक लेयर हो गया वो? Yes, sir. वेरी गुड। और मैडम लोगों ने आपको क्वेश्चन बैंक दिया? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है Sir, ठीक है। और याद रखना भाई, सिर्फ स्लाइड्स और क्या ऑनलाइन मटेरियल पढ़ना बंद करो एग्जाम के लिए, ये ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है। अगर आपको 4-5 साल के बाद भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क पे अगर ग्रिप होना, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पे अगर ग्रिप होना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेक्स्ट बुक, कोई भी सब्जेक्ट हो। अरे स्पेशली जो गेट में रहते हैं ना सब्जेक्ट, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क्स हो गया, कंपाइलर डिजाइन हो गया, ऑटोमेटा थ्योरी हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, और कौन सा लीनियर अलजेब्रा हो गया, ये सारे कुछ जो सब्जेक्ट्स है, या पीपीटी तो अपलोड कर देगा, कुछ जो सब्जेक्ट्स है एक टेक्स्ट बुक ही पढ़ना, और एक एक टेक्स्ट बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मान ले कंप्यूटर नेटवर्क के लिए टेनेनबाउम पढ़ो आपकी डाटा लिंक लेयर के लिए, और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आप कोर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक और बुक है फरोजन बुक, बहुत अच्छा रहेगा फरोजन बुक। अगर आपको टीडीएम में, एफडीएम में, सीडीएम में समझना हो, या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बारे में अच्छे से समझना हो, तो फरोजन बुक अच्छा रहेगा। वैसे अगर तुम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, मतलब ये डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको जो राजशेखरन का है ना, आथर राजशेखरन का डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बाय राजशेखरन एंड एक फॉरेन ऑथर है, वो बुक के साथ साथ आपको बाकी 2-3 बुक्स भी है। उन ऑथर का नाम है एक ओलमैन, वो भी पढ़ लेना चाहिए। ओलमैन का 2 भी है, एक ऑटोमेटा थ्योरी में भी है, आहो ओलमैन, उसके लिए वो भी बुक अच्छा रहेगा, कंपाइलर डिजाइन का भी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आदत ना छोड़िए। जब तक तुम लोग पीजी कंप्लीट नहीं करोगे तब तक टेक्स्ट बुक ही पढ़ना। ऑनलाइन मटेरियल पढ़ोगे, पीपीटी पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप 1 महीना 2 महीने के बाद, जैसे आपका ग्रेजुएशन हुआ, 1-2 महीने के बाद अगर आके किसी ने आपसे पूछा कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई क्या की, तो आपके पास जल्द कुछ नहीं रहेगा। तो ट्राई टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स, ओके। और पीपीटी की जो बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में अभी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर कर दूंगा मैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो मुझे मेल कर दो। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।